तो ठीक है, ये अब हम लोग ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इकोनॉमी गणना चक्र स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से तो 3 स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट थ्योरी पे ऑगस्ट कॉम्टे ने काम किया था। और उन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी। एक पहली है थियोलॉजिकल, दूसरी है मेटाफिजिकल और तीसरी है पॉजिटिव या फिर साइंटिफिक स्टेज, ठीक। तो 3 स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट गिवन बाय ऑगस्ट कॉम्टे। फर्स्ट इज़ मेटाफिजिकल, sorry, the first is theosophical, the second is metaphysical, and third is positive or scientific stage. इसके बाद the first measure of development, uh, that is per capita income, which was envisaged in 1934 by USA. So the team was headed by Simon Kuznets. uh, the team was headed by Simon Kuznets, जो per capita income वाला concept 1934 में USA ने ले आया था. That was due to the efforts by a team from USA which was headed by Simon Kuznets, and Simon Kuznets was ठीक है. Then came the PQLI as the second measure of social development in 1970s, which is a physical quality of life index by Overseas Development Council, headed by Maurice Davis, which entails literacy, infant mortality and life expectancy. तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसमें क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं, बस ये इम्पोर्टेंट है कि 1934 में पहला अटेम्प्ट लिया गया था सोशल डेवलपमेंट को नापने का बाय यूएसए, अ टीम फ्रॉम यूएसए विच वाज हेडेड बाय साइमन कुजनेट्स. सो दैट वाज डन इन 1934, और जो कॉन्सेप्ट का नाम था दैट वाज पर कैपिटा इनकम. देन सेकंड अटेम्प्ट ऑफ मेजरिंग सोशल डेवलपमेंट वाज डन बाय द efforts of an organization called Overseas Development Council, which was headed by Maurice Davis in 1970s. And this time the name of the concept was PQLI, that was physical quality of life index. Now then there was a third method of measuring the social development that came in 1990 by the efforts of Amartya Sen as well as Mehboob ul Haq, and that was Human Development Index. So that came in 1990. तो अब मैंने तीनों आपको बता दिया, इनफैक्ट चारों बता दिया. So we have 3 stages of social development theory that was given by Auguste Comte. The first was theosophical, the second was metaphysical, and the third was positive or scientific stage. उसके बाद मैंने बताया the first measurement of social development came in the form of per capita income concept in 1934 by a team from USA which was headed by Simon Kuznets. The second attempt was to measure the social development was done by Overseas Development Council headed by Maurice Davis, and the third attempt was done by Amartya Sen and Mehboob ul Haq in the form of Human Development Index in the year 1990. Now UNDP was instituted in 1965 and its first report जो आई थी Human Development Report that came in 1990. तो देखो UNDP बना दिया 1965 में, लेकिन रिपोर्ट आई थी लगभग 25 साल बाद. So UNDP was made in 1965 and its first report came in 1990. That was the Human Development Report, and it focuses on per capita GNI, that is gross national income, life expectancy and literacy. And before 2010 the per capita GDP was used, but 2010 के बाद ये per capita GNP पे आ गए थे, सॉरी ग्रॉस नेशनल इनकम पे आ गए थे, पर कैपिटा GNI पे आ गए थे. सो 2010 के बाद ऐसा हुआ था. द मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1. जब हम ये बात कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की मेरे ख्याल से बात कर रहे हैं. द मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1 एंड द मिनिमम इज़ 0. इन अदर वर्ड्स हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द पैरामीटर्स फॉर मेजरिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ठीक है, तो इनफैक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कह लो या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कह लो, एक ही चीज़ है. नाउ इंडिया रैंक्ड 132nd पोजीशन in the Human Development Report, having a score of 0.633 in the year 2023. In Global Hunger Index हमारी पोजीशन 111वीं है और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 132वीं पोजीशन है. ठीक है, सो हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 3 पैरामीटर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को नापने के लिए, और इसमें मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. एंड UNDP बन गया था 1965 में, लेकिन उसकी पहली रिपोर्ट आई थी 1990 में, दैट वाज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, and it lays stress upon per capita GNI, life expectancy and literacy. ठीक है, or we can say health, education and standard of living. Now per capita GNI 2010 के बाद लाया गया था. Before that it used to measure per capita GDP.
राइट। देन इंडिया की रैंक हमने देखी ह्यूमन डेवलपमेंट में 132वीं है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वीं है, बट दैट इज़ ये डेटा हमारा 2023 का है। देन टॉप 3 कंट्रीज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर देखा जाए तो स्विट्ज़रलैंड इज़ द टॉप, नॉर्वे एंड देन आइसलैंड। तो HDI में टॉप 3 कंट्रीज़ कंसिस्टेंटली ये लगभग हर साल आ जाती हैं, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड। Then alongside Human Development Report, UNDP started publishing Human Poverty Index in 1997 onwards till 2010. So Human Development Report जो पहली आई थी 1990 में, उसके साथ साथ UNDP ने 1997 onwards Human Poverty Index भी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया था और 2010 तक वो रिलीज़ करते थे। एंड देन 2010 के बाद Human Poverty Index was replaced by Multidimensional Poverty Index, having 10 parameters broadly spread across 3 sections. तो ये Multidimensional Poverty Index was developed by UNDP, ये तो हम जानते ही हैं। साथ में एक ऑक्सफोर्ड नामक कोई संस्था है, उसका फुल फॉर्म याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनिशियल्स याद रखो, OPHDI, ठीक है। तो ये हमने देखा किस तरह से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नापने का एवोल्यूशन हुआ था। 1997 से ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स नापना शुरू किया, फिर 2010 के बाद वही चीज़ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बदल गई थी। इट वाज डन बाय द इनिशिएटिव ऑफ OPHDI एंड UNDP। नाउ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में मैंने बताया था कि 10 पैरामीटर्स होते हैं स्प्रेड अक्रॉस 3 डिफरेंट सेक्शंस या पैरामीटर्स। तो जो 10 चीज़ें हैं वो बता देते हैं। इसमें देखो यहाँ भी हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही नापा जा रहा है, बट इसके इंटरनल पैरामीटर्स देखें तो हेल्थ को आप कैसे नापोगे? हेल्थ को आप चाइल्ड मोर्टालिटी से नापोगे और न्यूट्रिशन से नापोगे। एजुकेशन को आप ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और अटेंडेंस से नाप लो। इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपके पास कुकिंग फ्यूल है कि नहीं है, सैनिटेशन सुविधा है कि नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर है कि नहीं है, फिर हाउस, इलेक्ट्रिसिटी और एसेट्स ये है कि नहीं है। हाउस, इलेक्ट्रिसिटी एंड एसेट्स। तो द ईजीएस्ट टू रिमेंबर इज़, देखो हाउस, इलेक्ट्रिसिटी एंड एसेट्स तो सबसे आराम से याद कर सकते हो। इसके अलावा कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, तो 6 यहाँ हो गए, 2 यहाँ 8 और 2 10। तो ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नापना है तो कुकिंग फ्यूल है कि नहीं है, सैनिटेशन सुविधा है कि नहीं है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं है, फिर हाउस, इलेक्ट्रिसिटी एंड एसेट्स है कि नहीं है। 6 ये हो गए, ये तुम्हारा नाप लिया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर एजुकेशन नापना है तो फिर तुम्हारा अटेंडेंस नापेंगे और मिनिमम ईयर्स ऑफ स्कूलिंग या फिर नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग वो नाप लेंगे। तो एजुकेशन हो गया। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि एजुकेशन को नाप लिया, उसके बाद अब हेल्थ को नापना है तो चाइल्ड मोर्टालिटी और न्यूट्रिशन को नाप लेंगे। तो इस तरह से हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को नाप लेंगे 10 पैरामीटर्स स्प्रेड अक्रॉस 3 डिफरेंट एरियाज। देन 1996 में UNDP डिस्क्राइब इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया एज वॉइसलेस, फ्यूचरलेस एंड जॉबलेस। तो just before launching this multidimensional poverty index in 1997, 1 year before, that is in 1996, UNDP declared India's economic development as voiceless, futureless and jobless, ठीक है। Then Universal Declaration of Human Rights, ये एक international covenant है। Equal access to public services, elementary education for children को फ्री देना है, एंड एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग हेल्थ, क्लॉथिंग, फूड, मेडिकल केयर एक्सेट्रा, दीज आर इनंसिएटेड इन आर्टिकल 21, 25 एंड 26। सो इस पे सवाल आना नहीं चाहिए, बट मेनली आप ये मोटा मोटा याद कर लो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आर्टिकल 21, 25 और 26, 21, 25 और 26, इसमें आपको वही सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नाप रहा है। जैसे मोटा मोटा ओवरलैप मिल जाएगा, जैसे हेल्थ हो गया, ठीक है, और हेल्थ में फिर मेडिकल केयर भी आ जाएगा, फिर कुकिंग के लिए फिर तो फूड आ जाएगा, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन आ जाएगा, इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज आ जाएगा। तो ये सारी बातें कहाँ लिखी होंगी? आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। नाउ मध्य प्रदेश in 1995 became the first state in the world to produce its own state-based Human Development Report. Surprisingly, Kerala stands first in the Human Development Index, and ये हमारा जो इंडिया लेवल पे है उसकी बात कर रहे हैं, तो केरला स्टेट स्टैंड्स फर्स्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो फिर देखो स्विट्ज़रलैंड है, नॉर्वे और आइसलैंड है,
यह ऊपर हम बता चुके हैं। तो इंडिया में स्टेट की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में केरला इज़ एट द टॉप, देन हरियाणा मोस्ट अनएम्प्लॉयड फॉलोड बाय राजस्थान, बिहार एंड झारखंड। तो मोस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट की बात करें तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, उस फॉलोड बाय राजस्थान, उसके बाद आएगा बिहार एंड झारखंड। ठीक है, तो इसको दो टुकड़ा में बांट दो, हरियाणा एंड राजस्थान टॉप 2 मोस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट्स फॉलोड बाय बिहार एंड झारखंड। ठीक है, फिर SEQI की बात करें तो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है, इसमें आंध्र प्रदेश ने टॉप किया था 2023 में, बट ये अब आउटडेटेड हो गया है, तो अभी 24 का देख लेना। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, अब ये इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? नीति आयोग रिलीज़ करता है। देन एसर रिपोर्ट 2022, इसमें ये पाया गया 2022 में कि ओवरऑल एनरोलमेंट इनटू स्कूल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 इन 2022 ये 98.1% था। एंड एसर रिपोर्ट 2022 में ये पाया गया कि 72% एनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड 25% इन प्राइवेट स्कूल्स। तो सारे तो एनरोल नहीं हो रहे हैं, मतलब 97 ही हो पा रहा है यहाँ पे। तो 25% बच्चे प्राइवेट स्कूल में एनरोल कर रहे हैं और 72% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल कर रहे हैं। एंड ओवरऑल एनरोलमेंट रेशियो इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 इन स्कूल्स इज़ 98.1%। ठीक है, नाउ PM केयर्स की बात करें, ये PM is the ex officio chairman of PM Cares Fund, while Defense Minister, Home Minister and Finance Ministers, they are the ex officio trustees. तो ये ex officio trustees होते हैं। The chairman of PM Cares can further nominate 3 eminent persons as trustees. ठीक है, the chairman can further nominate 3 eminent persons as trustees. So ये हो गया PM Cares. Then PM Jai की बात करें, जन आरोग्य योजना, it covers about 10.74 crore families through health insurance कवर अप टू 5 lakhs पर फैमिली पर ईयर। तो इसमें ये संख्या इंपॉर्टेंट है, 10.74 करोड़ फैमिलीज़ को कवर करता है ये, 5 लाख रुपीज़ हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली पर ईयर। दिस इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड 60-40 कंट्रीब्यूशन होता है यूनियन एंड स्टेट्स में, और इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमालयन स्टेट्स ये कंट्रीब्यूशन यूनियन की तरफ से 90% जाता है और स्टेट्स की तरफ से 10% जाता है। In case of northeastern and the Himalayan states, then a national health authority is the apex body to oversee the implementation of this scheme. This scheme has subsumed Labour Ministry's Rashtriya Swasthya Bima Yojana and Textile Ministry's Rajiv Gandhi Shilp Swasthya Bima Yojana. तो ये जो दो योजनाएं थी, एक राजीव गांधी क्या है ये, राजीव गांधी शिल्प स्वास्थ्य बीमा योजना, राजीव गांधी शिल्प स्वास्थ्य बीमा योजना, और एक है ये लेबर मिनिस्ट्रीज़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इन दोनों को मर्ज करके प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बनाया गया था। ठीक है, सिमिलरली CM चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस, ये राजस्थान गवर्नमेंट का हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, एंड इसमें 50,000 कवरेज फॉर नॉर्मल डिजीज़ दिया जाता है और 4.5 लाख रुपए फॉर सीरियस डिजीज़ दिया जाता है पर फैमिली पर ईयर। इतना डीप में नहीं पूछेगा, बट ये जानना ज़रूरी है कि CM चिरंजीवी योजना कौन से राज्य की है। ठीक है, और ये जानना ज़रूरी है कि PM जन आरोग्य योजना कौन से 2 अस्तवाइल योजनास को मर्ज करके बनाया गया है। तो एक है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का राजीव गांधी शिल्प स्वास्थ्य बीमा योजना, और एक है लेबर मिनिस्ट्री स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, देन सिमिलरली आयुष्मान सहाकर। सो आयुष्मान सहाकर इज़ अ स्कीम टू असिस्ट कोऑपरेटिव्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इन द क्रिएशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो आयुष्मान सहाकर एक योजना है जो उन कोऑपरेटिव्स की मदद करने के लिए है जो कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करती है, इन द क्रिएशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, देन नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इज़ द इम्प्लीमेंटिंग बॉडी टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम आयुष्मान सहाकर। Then NRHM 2005 introduced the ASHA concept in 10th 5-year plan. This is National Rural Health Mission 2005. तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो 2005 का आया था, उसने आशा कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया था, और NRHM 2005 के समय कौन सा 5-year प्लान चल रहा था? सो दैट वाज 10th 5-year प्लान। सो फॉर क्वालिटी हेल्थ केयर असिस्टेंस इन रूरल एरियाज आशा वाला कॉन्सेप्ट ले आया गया था 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत और 10th 5-year प्लान के अंतर्गत। द स्कीम वाज सबस्यूम्ड अंडर ओवर आर्चिंग नेशनल हेल्थ मिशन 2013। तो फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो 2005 में था स्कीम, उसको इसमें सबस्यूम कर दिया गया था
नेशनल हेल्थ मिशन 2013। तो मोटा मोटा आपको ये दो टाइमलाइन याद रखनी है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब आया था, 2005 में आया था, लेकिन नेशनल हेल्थ मिशन कब आया था, 2013 में आया था। देन द मोस्ट लेटेस्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ये अभी हमारी मेरे ख्याल से 2017 की है, उसके बाद से कोई नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी नहीं है, ठीक है। देन नेशनल हेल्थ पॉलिसीज टारगेट क्या है, मतलब जो 17 में बनी थी कि अपने जीडीपी का 2.5% एक्सपेंड करना है आपको हेल्थ सेक्टर में। और यूपी की अपनी एक शबरी संकल्प अभियान है, 2017 में लॉन्च की गई थी, टू इराडिकेट माल न्यूट्रिशन। शबरी संकल्प योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है टू इराडिकेट माल न्यूट्रिशन। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 में लाई गई थी, उसका टारगेट था कि टू इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सेक्टर 2.5% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। देन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये 1975 में ले आई गई थी। इट वॉज स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर। और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 2 अक्टूबर, इट नॉट ओनली इंक्लूड्स हेल्थ न्यूट्रिशन मेजर्स बट ऑल्सो प्री स्कूल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड रेफरल सर्विसेज, ठीक है। तो ICDS में केवल बच्चों के मतलब हेल्थ और न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देना था, बल्कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन, प्री स्कूल एंड रेफरल सर्विसेज जैसे प्रावधान भी उसमें थे। Then ICDS was a flagship program of Ministry of Women and Child Welfare. Providing free school books and dress or family planning education was not a part of Integrated Child Development Scheme of 1975, ठीक है। उसमें मुफ्त के कपड़े और किताबें देने का कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था। हाँ, रेफरल सर्विसेज था, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, प्री स्कूल लेवल तक का नॉन फॉर्मल एजुकेशन का प्रावधान था और रेफरल सर्विसेज का प्रावधान था। द नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम 1983 में ले आया गया था। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ये 1976 में ले आया गया था। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस 1976 एंड नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम 1983, ईयर इंपॉर्टेंट है। स्वावलंबन, अब स्वावलंबन क्या था कि ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। स्वावलंबन स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2010 एज अ को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम फॉर वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड, तो अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट लिख सकते हैं। स्वावलंबन वॉज 2010 में ले आया गया था, को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम फॉर वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अभी नहीं है। देन PM वय वंदना याद कर लो और PM रोजगार प्रोत्साहन, इसका वो देख लो टाइम। इनफैक्ट अब ये यहाँ से हमारे जो योजनाएं हैं मेन वो स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसको हम अगले वीडियो में देखते हैं।